Hello friends, welcome to Unacademy, which is India's largest learning platform, and welcome to this channel that is the Crack UPSC CSE. We have India's best educators with us that are here to guide you in your journey towards the civil services exam. My name is Pavneet and I'll be teaching you India's national security series on this esteemed channel. I am an author of the internal security book, which has been published by the McGraw-Hill Education. And this book is basically the primary textbook that is used by the aspirants to prepare for internal security. You can join us on our Telegram channel as well as on my community, both of whose links are given in the description of the video below. Friends, we also have now the UPSC 2.0 notes, which are comprehensive notes with mind maps, timelines, and all contemporary issues. And these will be available to you on the Unacademy subscription. An important update here is that, friends, you can avail the 20% discount on your UPSC subscription valid from the period of 18th to 22nd July. And this subscription is available for Plus as well as Iconic, and you can appropriately select your duration of the subscription, and you can use the code PAVIAS for the purpose of joining Unacademy, as a result of which you will also get heavy discounts. And these discounts will not just enable you to save money, but more importantly help you in your preparation, because when you join us, we are all there to give you the quality education that you have come here for, and we will help you to achieve your goal. We also have a CSE Assure, which is available again in the same period, which you can join to get a 20% discount, and a code here to be used is the PAVIAS. Friends, there is also a combat, which is a 50 question test where you have to solve that in 60 minutes. You have scholarships which are up to worth 4 crore rupees, and an important aspect is that the test is available in Hindi and English both. The next test is on 24th of July at 11 AM. Enroll for this test. The link to join the test is given in the description below. It's a free test for everyone. You have quality questions. I also make questions for combat. PAVIAS is the code for enrollment. Free test. Join it using this code. Unacademy, we have the best educators. The most important, we have unlimited views on our lectures which are available on our platform. And the fact that 120 toppers in 2020 and 178 selections in 2021 proves the fact that we are here to give you quality education and deliver quality education to every one of you to ensure that your name also comes in the merit list. In case if you have any financial difficulty, contact us, contact our team. They will help you to get a 0% based EMI support so that the finance does not become a hurdle in your overall dream to become a civil servant. Friends, the topic that we are going to discuss today is a very simple, straightforward, but a very important topic, which is called India's tank problem and internal security threats. Now, friends, let's understand few things. That why did India have a tank problem? How did we come to this situation where we are today? What do we see going from here to the future? So let's have a larger thought process clear first, which is very important for us to understand. When we became independent in the year of 1947, at that time we were a happy to go peaceful nation. And we realized that if we are not going to trouble anybody, why would somebody trouble us? With that thought, we continue to exist even today in the world. But the problem was that when we became independent, one of our neighbors, which was carved out of our own territory, Pakistan, they apparently became very insecure because they were envisaging the territory of Kashmir, which otherwise they did not get when the Britishers transferred the power. And they felt that the partition is still incomplete. And as a result of which, one thing that happened was that Pakistan thought that I have to forcefully take Kashmir. If I don't do that, I will never perceive the partition to be complete. Within months of, the independence of India, creation of Pakistan, they attacked us. And when they attacked us, it led to the outbreak of the first Indo-Pak war. That was the first time when we realized that somebody is there who's going to attack us, is somebody who's going to target us like that.
Even though we did not provoke them, they were the ones who initiated the provocation. So we had to accept the new challenge, we had to absorb it. It came as a shock to us. We weren't prepared very well. We gave our best. Pakistanis tried to occupy territory, we tried to repel them. We reoccupied some of the territory that they had occupied. Unfortunately, because of the winter season and other aspects involved with the British playing an interfering role, we had to agree for a ceasefire agreement under the Karachi Agreement, which eventually got signed and the war came to an end. देखिए दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय हम एक विचारधारा को लेके बैठे थे और हमारी विचारधारा ये थी कि अगर हम किसी देश को तंग नहीं करेंगे तो कोई दूसरा देश हमें क्यों तंग करेगा। जाहिर सी बात है, ये विचारधारा भारत ने आज तक रखी है। हमने अपनी तरफ से कभी किसी देश को तंग नहीं किया, कभी किसी देश को प्रोवोक नहीं किया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे देशों ने हमारे साथ हरकतें नहीं करी, पाकिस्तान ने करी। ये बात हम जानते हैं। दोस्तों, 1947 में जो ब्रिटिश है वो हम लोग को छोड़ के जाता है, आज़ाद करके जाता है। हमारे भारत के ही टेरिटरी के अंदर से तोड़ के एक टेरिटरी पाकिस्तान बनाई जाती है। और जब हमारे टेरिटरी को तोड़ के एक टेरिटरी पाकिस्तान बनाई जाती है तो पाकिस्तान के उस समय एक आस होता है, उसके मन में एक एम्बिशन होता है कि भाई मुझे कश्मीर चाहिए, क्योंकि वो मानता है कि भाई कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस था, एक हिंदू रूलर महाराजा हरी सिंह के पास था। तो उसको लगा कि भाई एक हिंदू रूलर जो एक माइनॉरिटी है, एक मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को कैसे रूल कर सकता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो चाहते थे कि भाई ये इलाका हमें मिले। कश्मीर में स्थिति जैसी भी थी, उस स्थिति का एडवांटेज पाकिस्तान ने लिया, क्योंकि उसके मन में एक आस थी, उसके मन में एक एम्बिशन था कि भाई मुझे कश्मीर चाहिए, हर हालात में चाहिए, जैसे मर्जी मिल जाए मेरे को चाहिए। अब लीगल तरीके से वो ले नहीं पा रहा था, तो उसने एक इलीगल हरकत चालू कर दी। उसने अपने ट्रूप्स को भेजना शुरू कर दिया लोगों के भेष में। ये भी एक बड़ा नया कंसेप्ट था कि भाई ट्रूप्स को ट्रूप्स की तरह मत भेजो, बट ट्रूप्स को एक नया भेज दे के भेजो, आम आदमी बना के भेजो। तो उन्होंने उनको ट्राइबल लोगों की तरह बना के, उनको भेज दे के, उनके हाथों में बंदूक दे के उनको भेज दिया हमारे कश्मीर की तरफ। उस समय ये पूरी जो चीज़ मैनिफेस्ट करी, इसको हम कहते हैं कि एक ट्राइबल इन्वेजन हुआ कश्मीर में। दोस्तों, सोचो कि कितनी आयरॉनिकल बात है कि ट्राइबल इन्वेजन बोलते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों ने दिखाया कि ये ट्राइब्स आ रहे हैं वहाँ से। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ट्राइबल लोगों का इतिहास पढ़ो तो आप जानोगे कि ट्राइबल लोग जो होते हैं, जो ट्राइब्स होते हैं, वो कभी लड़ाई नहीं करते। सबसे ज़्यादा पीसफुल लोग होते हैं। वो अपने एरिया में, अपने इलाके में, अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए आराम से सुख शांति की ज़िंदगी जीते हैं। उनको लड़ाइयों से कुछ लेना देना नहीं है। दिक्कत क्या हुई, उस एस्पेक्ट पे चर्चा नहीं करते कि वो ट्राइबल इन्वेजन क्यों कहा गया, कैसे कहा गया, वो नैरेटिव कैसे बनाया गया। बट लोग आए जो कि ट्राइबल के भेष में आए, जबकि वो ट्राइबल नहीं थे, वो थे पाकिस्तान के आर्मी के सोल्जर। उन्होंने कश्मीर पे आके अटैक करना शुरू करा, लोगों को मारना शुरू करा, टेरिटरी को ऑक्यूपाई करते गए। तो महाराजा हरी सिंह जो थे उस टाइम पे, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर बन रहा था। तो उन्होंने उस प्रेशर को मिटिगेट करने के लिए क्या किया कि भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया। जब उन्होंने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया तो कश्मीर लीगली जो है भारत का हिस्सा बन गया। अब ये चीज़ लीगली जब भारत का हिस्सा बन गया तो पाकिस्तान के मन में और खटक गई कि भैया ये कैसे हो गया, हम तो चाहते थे कि कश्मीर हमारा हो, हमने तो ये ट्राइबल रेड तक इंस्टिगेट कर दी, वो भी उससे कामयाब नहीं हो पाए। अब जैसे ही भारत का हिस्सा बना कश्मीर महाराजा हरी सिंह के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद, तो दोस्तों एक चीज़ तो तय हो गई कि भाई अब भारत को कश्मीर की सुरक्षा के लिए काम करना था। कश्मीर में आए हुए जो ये ट्राइबल रेडर्स थे, इनको भगाना था। हमने भगाया, हमने उनको अपनी आर्मी भेजी। और ये सारा गेम अक्टूबर नवंबर में अनफोल्ड हुआ। दिसंबर में सर्दी पड़ गई, बर्फ़ हो गई, ऑपरेशंस रुक गए। फिर 1948 में मसला यूएन चला गया। अब वो चलिए यूएन की एक अलग चर्चा है, उस पर हम नहीं जाते। चर्चा जैसी भी थी वो ये थी कि भाई मसला कश्मीर का एक टेम्पररी हल निकाला गया। पाकिस्तान ने जिस पोजीशन को होल्ड करके रखा था उस पोजीशन पे वो डटे रहे, हमने जिस पोजीशन को रीऑक्यूपाई कर लिया था हम डटे रहे। तो चीज़ साधारण तरीके से चल गई। पर दोस्तों, ये जो 1947-48 का युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, इसने हमें सोचने पे मजबूर किया।
इसने हमें सोचने पे ये मजबूर किया कि भाई हमारा जो सबसे बड़ा वैरी है वो है पाकिस्तान। क्योंकि हमें ये लगा दोस्तों कि ये एक ऐसा देश है कि इस देश को हमने तो तंग नहीं किया था, लेकिन इस देश ने हमने इसको तंग करे बिना इसने हमारे को तंग किया, हमारे ऊपर आक्रमण किया। गलत है ये। हमें ये चीज़ पसंद बिल्कुल नहीं आई। समय चलता गया, जैसे जैसे समय चला दोस्तों, भारत का एक तरीके से चीन के साथ 1962 में एक हमारा सीमा को लेके विवाद हो गया। देखिए, भारत चीन की सीमा का विवाद क्या है क्या नहीं, हम उसको यहाँ पर एनालाइज नहीं कर रहे हैं, पर एक साधारण तौर से अगर आप क्रोनोलॉजी समझें तो उसमें ये देखने को मिलता है कि दोनों देशों के बीच में एक सीमा थी और इस सीमा पे ब्रिटिश के दौरान से कोशिश की जा रही थी कि एक म्यूचुअली एग्रीएबल सीमा बना ली जाए, बट नहीं हो पाया वो। तो जब ब्रिटिश गए, जब चीन का सिविल वॉर ख़त्म हुआ, तो उसके बाद दोनों देशों के ऊपर एक ये बहुत बड़ा एक समस्या आके बैठी हुई थी कि भाई एक कॉलोनियल एक बॉर्डर है दोनों के पास सॉल्व करने का। कोशिशें दोनों देशों ने करी 1950 से लेके 1960 तक, 10 साल लगातार। हम खत भी उनको लिखते रहे, वो खत हमें लिखते रहे, कभी हम वहाँ गए, कभी वो हमारे यहाँ आए, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मसला हल नहीं हो पाया। मसला हल ना होने के बाद एक तरीके से दोनों देशों में इनसिक्योरिटी भी बढ़ती गई और 1962 में उस इनसिक्योरिटी के कारण हमने देखा कि एक चीन के साथ हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। पर ये चीन के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोस्तों, हमें ये पता था कि ये केवल एक सीमा के विवाद को लेके है। हमें ये पता था कि ठीक है, 10 साल हुए बात करते हुए, इतनी पुरानी सीमा है जो ब्रिटिश के दौरान से 150 सालों से चल रही है। जब ब्रिटिशर्स इतने समय से उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो ये आस रखना और ये एक आशा करना कि 10 साल के पीरियड में वो इतना बड़ा एक जो सीमा का विवाद है वो हल हो जाएगा, वो वैसे भी नेचुरल नहीं था। तो हमें 1962 के बाद एक चीज़ तो तय हुई कि हमें ये लगा कि ठीक है कि चीन से हमें खतरा ज़रूर है, लेकिन हमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली लगा दोस्तों कि चीन के से जो खतरा आ रहा है, इस खतरे को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। हमें लगा कि चीन से जो ये विवाद हुआ, एक तरीके से डिप्लोमेटिकली इस विवाद को हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो विवाद होने के बाद भी कहीं ना कहीं मन में एक पॉजिटिविटी थी, कहीं ना कहीं मन में एक थॉट प्रोसेस था कि ठीक है, चीज़ें मैनेजेबल हैं। हमें लगा कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, समय देंगे, चीन का मसला हल हो जाए। पर दोस्तों, जैसे ही ये चीन के साथ सीमा का विवाद 1962 में हुआ, इसके लगभग प्रिसाइसली 3 साल के बाद जो है पाकिस्तान ने 1965 में दोबारा भारत के साथ जंग छेड़ दी। हमारे सुरक्षा के जितने भी लोग थे, भारत की सुरक्षा नीति बनाने वाले जितने भी विशेषज्ञ थे, इन सब के मन में 1947 अभी फ्रेश था। इन सब के मन में एक चीज़ तय थी कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको हमने तंग नहीं किया था उस समय भी, और इस देश ने उस समय फिर भी हमें तंग करने की कोशिश करी। हमें एक चीज़ समझ आ गई, और वो ये चीज़ समझ आ गई कि पाकिस्तान जैसा देश, जिसने ऐतिहासिक तौर पर 1947 में हमारे ऊपर आक्रमण पहले भी किया है, ये जैसा देश हमारे थॉट प्रोसेस में डीपली बैठा हुआ था। इसको मैनेज करने के, टैकल करने के हम लोग तरीके ढूंढ रहे थे, और उस सोच के दौरान ही पाकिस्तान ने 1965 में ये हरकत कर दी। दोबारा से जंग हुआ, किन कारणों से हुआ, क्या नहीं हुआ, उस एस्पेक्ट में नहीं जाते, वो एक लंबी कहानी है। पर जंग हुआ, पाकिस्तान को सबक सिखाया गया दोबारा। पर 1965 के बाद भारत के सुरक्षा नीति के विशेषज्ञों को एक चीज़ उनके मन में क्लियर कट बैठ गई कि हमारे लिए अगर, भारत के लिए अगर, या भारत की सुरक्षा के लिए अगर देखा जाए, तो
अगर कोई सबसे बड़ा थ्रेट है तो ये सबसे बड़ा थ्रेट पाकिस्तान है। और जब हमें ये चीज़ समझ आ गई कि भारत की सुरक्षा के लिए अगर कोई थ्रेट है और वो पाकिस्तान है, तो हमारे सुरक्षा नीति के जितने भी विशेषज्ञ थे, भारत की सुरक्षा नीति में जितनी भी संस्थाएं थीं, चाहे उसमें गृह मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, भारत के प्रधानमंत्री खुद हों, इन सब लोगों को एक चीज़ समझ आ गई कि जो हमारा सबसे बड़ा वैरी है वो पाकिस्तान है। चीन के साथ 1962 में जो भी हुआ, हमें एक चीज़ तो क्लियर थी कि चीन के साथ सीमा का विवाद है, ये सीमा का विवाद हल हो जाएगा। हमें आशा थी, हमें विश्वास था कि भाई बातचीत करेंगे, इतना पुराना विवाद था, ब्रिटिश के समय से चल रहा है, तो कोई एक दिन में तो ख़त्म नहीं होने वाला, समय तो लगेगा उसमें। तो हमें ये था कि भाई ठीक है, उसके लिए हम लोग इंतज़ार करते हैं, लेकिन उस इंतज़ार में इसने 2 बार हमें धोखा दिया। तो भारत के सुरक्षा नीति में जितने जुड़े हुए लोग थे, भारत की सुरक्षा नीति के जितने भी विशेषज्ञ थे, ये सारों ने बोला कि भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा वैरी जो है वो है पाकिस्तान। इसको हमें हर हालात में अपने थॉट प्रोसेस में भी लाना है, और इस देश को सबसे इम्पोर्टेंटली हमें ये इंश्योर करना है कि इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास नीतियाँ हों। तो भारत ने इस दौरान एक चीज़ तय कर ली। उन्होंने ये बोला कि भाई भारत के लिए सबसे बड़ी अगर समस्या पाकिस्तान है, तो हमने सबसे पहले ये जानने की कोशिश करी कि ये पाकिस्तान कैसे है। हमने कहा कि भाई देखिए, पाकिस्तान ऐसे है कि इसने सबसे पहले कश्मीर में आक्रमण किया 1947 वाले युद्ध में। हमें ये लगा कि भाई 1947 के युद्ध में अगर कश्मीर पे आक्रमण हुआ था तो वहाँ पर तो कराची एग्रीमेंट के तहत एक सीज़फायर लाइन बना के रखी हुई है, तो पाकिस्तान उसका उल्लंघन तो कर नहीं रहा था। लेकिन 1965 में राजस्थान के साइड पे, गुजरात के साइड पे और पंजाब के साइड पे पाकिस्तान ने युद्ध करा हमारे से। तो दोस्तों, हमारे जो सुरक्षा विशेषज्ञ थे, हमारे यहाँ पर जितनी सुरक्षा संस्थाएं थी, उनके मन में एक चीज़ बैठ गई कि देखिए, पाकिस्तान ने एक तरीके से कश्मीर में बना हुआ सीज़ फायर अग्रीमेंट जो है, जिसके तहत वो सीज़ फायर लाइन बनी हुई है, जिसको हम कराची एग्रीमेंट बोलते हैं, उसके तहत उस अग्रीमेंट का कोई उल्लंघन नहीं किया है। लेकिन उस अग्रीमेंट को छोड़ के जो बाकी बाउंड्री थी पूरी, जिसको हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर पोर्शन कहते हैं बॉर्डर का, उस बाउंड्री पे तो पाकिस्तान ने ऐसी हरकत कर दी हमारे साथ। तो हमारे सुरक्षा विशेषज्ञों के मन में ये आया कि भाई हमें अगर पाकिस्तान को टैकल करना है तो हमें वो पट्टी को पूरे रोकना है जो गुजरात, राजस्थान और पंजाब की तरफ है, जम्मू तक जाती है, क्योंकि जम्मू से ऊपर तो फिर वो कश्मीर वाला हिस्सा आ जाता है। और उधर तो क्या है कि भाई वो कराची एग्रीमेंट के तहत एक सीज़ फायर लाइन बनी हुई है, उसका उल्लंघन तो पाकिस्तान कर नहीं रहा है, और ना तो 1965 के जंग में वहाँ पर कोई हरकत देखी गई। तो दोस्तों, उस समय सुरक्षा विशेषज्ञों ने एक बात ये बोली कि भाई यदि पाकिस्तान को अगर मैनेज करना है, और उस मैनेजमेंट के लिए हमारे को कहीं ना कहीं ये देखना है कि भाई हमारे पास अगर पंजाब, राजस्थान और गुजरात वाला एरिया है, तो वहाँ पर हम क्या करें। उस समय दोस्तों हुआ ये कि जितनी भी हमारी ये सुरक्षा संस्थाएं थीं, सुरक्षा विशेषज्ञ थे, ये सब लोग बैठे, इन्होंने चर्चा करी और इन्होंने बोला कि देखिए, हमारे को अगर पाकिस्तान को टैकल करना है तो हमें हेवी टैंक्स का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास बड़े हेवी टैंक्स होंगे, इन टैंक्स को अगर हम लोग भारत की पूरी सीमा जो पाकिस्तान के साथ है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब में, वहाँ पर डिप्लॉय कर देंगे, तो उस डिप्लॉयमेंट से एक चीज़ तय हो जाएगी कि पाकिस्तान एक तरीके से डेटर होगा। सो व्हाट डू यू डू फ्रेंड्स टू क्रिएट डेटरेंस? यू इन्वेस्ट इन हेवी टैंक टेक्नोलॉजी। हेवी टैंक टेक्नोलॉजी। अब देखिए, अगर हमने बोला कि हमारा एक थॉट प्रोसेस ऐसा है कि भाई हमें पाकिस्तान को
डेटर करना है। डेटर का मतलब होता है प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना है। अगर हम चाहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान को एक तरीके से रोके कि वो कल को गुजरात, राजस्थान, पंजाब पर हमारे ऊपर आक्रमण ना करे, तो हमें हेवी टैंक में इन्वेस्ट करना है। अब ये चीज़ हमें पता थी दोस्तों कि भाई हेवी टैंक तो हमारे पास है नहीं। अगर हमारे पास हेवी टैंक नहीं है तो हमें हेवी टैंक्स खरीदने पड़ेंगे बाहर से। तो भारत के सुरक्षा विशेषज्ञों के मन में जो थॉट था दोस्तों, वो बड़ा क्लियर था कि देखिए, चीन के साथ मसला बातचीत से हल करने की कोशिश करते हैं और साथ साथ पाकिस्तान को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या करा, हमने हेवी टैंक्स में इन्वेस्टमेंट चालू किया। हमने सबसे पहले उन देशों से बात करी जिसमें रूस सबसे आगे था। हमने बोला भाई तुम्हारे पास टैंक्स हैं, हमें लाके टैंक दीजिए, हम खरीदेंगे आपसे। 1965 की जंग के बाद दोस्तों जो ये भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव आया, 1965 के बाद जो भारत की सुरक्षा नीति में एक नई थिंकिंग आई कि हमें हेवी टैंक चाहिए। हम लोग ये थॉट को लेके लगभग आप लगा लीजिए कि 1990 तक हम लोग अपना कार्य इसी प्रकार करते रहे। हमने नीतियाँ इसी तरह बनाते रहे कि हम लोग हेवी टैंक्स लाते रहे, हेवी टैंकों का हमने डिप्लॉयमेंट कर दिया पूरा। अब दोस्तों दिक्कत ये हुई कि हम लोगों ने आर्म्ड फोर्सेस लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे सारा फोकस लगा दिया हेवी टैंकों पे। हेवी टैंक से कम ये हुआ कि भाई गुजरात, राजस्थान, पंजाब वाले एरिया में तो हमने सिक्योरिटी इंश्योर कर ली, पर पाकिस्तान उधर दूसरी तरफ बैठ के ये चीज़ को तो देख रहा था। उसको भी ये समझ आ रही थी कि भाई भारत को अगर मेरे को आज की डेट में उकसाना पड़ा तो मैं इसको जो है गुजरात, राजस्थान और पंजाब वैसे इलाके में तो उकसाऊंगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो भैया हेवी टैंक है। भारत कल को उसी हेवी टैंक का प्रयोग मेरे ऊपर कर देगा तो हम तो ख़त्म हो जाएंगे। तो पाकिस्तान उस समय एक नई रणनीति बना रहा था। जब हम लोग ये नीति बना के काम कर रहे थे, उस समय पाकिस्तान ने एक नई रणनीति ये बनाई कि उसने अब ये सोचा कि भाई भारत ने अगर ये 3 इलाकों की सुरक्षा कर ली है तो हमें इन 3 इलाकों में अब कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। हम भारत को उस इलाके में तंग करते हैं जहाँ भारत कमज़ोर है। इस कारण से आप देखिए कि 1990 में इसने जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद शुरू कर दिया। जब 1990 के तहत कश्मीर में आतंकवाद शुरू किया, पाकिस्तान ने अलग अलग किस्म के तंजीम बनाए। उन तंजीमों के तहत एक कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इंडस्ट्री क्रिएट करी। आप मेरी सिक्योरिटी इशूज़ की किताब में ये चैप्टर को पढ़ सकते हैं, टेररिज्म इन कश्मीर, टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन इस पॉइंट के बारे में। तो 1990 में कश्मीर में जो पाकिस्तान ने एक खेल रचा, वो ये रचा कि अब वो ये देखना चाहता था दोस्तों कि क्या मैं भारत को उस इलाके में उकसा सकता हूँ जिस इलाके में भारत कमज़ोर है। क्योंकि अगर आप ध्यान से यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो भारत ने सारा टाइम क्या किया, यहाँ पर पूरा टाइम भारत ने 1947-48 की लड़ाई से लेके 65 की लड़ाई के बाद अगर किसी चीज़ पे फोकस किया तो वो फोकस था एक लैंड डॉक्ट्राइन बनाने का। लैंड डॉक्ट्राइन का मतलब ये होता है दोस्तों कि भारत ने पूरी की पूरी सुरक्षा नीति इस तरीके से डिज़ाइन करी कि हम पाकिस्तान को लैंड लेवल थ्रेट पे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब वाले इलाके में जहाँ पर 1965 में इन्होंने हरकत हमारे साथ की थी, हम इसको वहाँ पे टैकल करेंगे। तो भारत ने अपनी सारी सोच जो है एक लैंड डॉक्ट्राइन बनाने में लगा दी। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये हुई कि जब लैंड डॉक्ट्राइन पे हमने फोकस किया, और वो भी जो लैंड डॉक्ट्राइन था वो फ्लैट लैंड था, गुजरात, राजस्थान, पंजाब वाला, तो पाकिस्तान ने नई हरकत ये कर दी कि 1990 में वो कश्मीर चले गए। कश्मीर तो उनके मन में पहले दिन से बैठा था 1947-48 की लड़ाई से। अब पाकिस्तान ने ये सोचा कि भैया यहाँ पर भारत अभी कमज़ोर है, यहाँ पर उसको तंग करो। 1990 से वो जो है हमें कश्मीर में उसने पहले 5 से 6 साल 96 तक आतंकवाद की हरकतें बढ़ाई। भारत ने वो आतंकवाद को बहुत अग्रेसिव तरीके से रोका। जब हमने उस आतंकवाद को अग्रेसिव तरीके से रोका तो पाकिस्तान को एक समझ आ गई 1995-96 तक कि कश्मीर में
अगर हम मिलिट्री लेवल पे कुछ हरकत करें तो भारत का ये लैंड डॉक्ट्राइन एक फेलियर है, क्योंकि ये लैंड डॉक्ट्राइन फ्लैट लैंड के लिए बना है। भारत के पास तो लैंड डॉक्ट्राइन को इसके सिवाय कुछ है ही नहीं, ये तो फेलियर है कश्मीर में। इस नज़रिए के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो 1999 में इन्होंने करा कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, अब देखिए हुआ क्या दोस्तों। अब यहाँ पर हुआ ये बड़ी आयरॉनिकल बात है कि भाई कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पहली बात तो जो हरकत की गई वो की गई पाकिस्तान की तरफ से। अब हुआ क्या कि इन्होंने एक बायलैटरल एग्रीमेंट जो 1994 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, पहले तो उस एग्रीमेंट का उल्लंघन किया, और दूसरी बात क्या हुआ कि दोस्तों इन लोगों ने उस एग्रीमेंट के उल्लंघन के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इन्होंने जिहादियों को तंजीम से लाके नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री जो इनकी डिप्लॉयड थी वहाँ बाउंड्री पे कारगिल दराज सेक्टर में, उसके साथ जोड़ के एक तरीके से भारत के बंकरों को, जो कि सर्दियों के सीज़न में खाली पड़े हुए थे क्योंकि ट्रूप्स नीचे आ गई थी, इन्होंने उनको ऑक्यूपाई कर लिया। और सिर्फ ऑक्यूपाई नहीं किया, कई स्थानों पर कारगिल और द्रास सेक्टर में तो पाकिस्तानियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके हमारे यहाँ के बंकरों को भी ऑक्यूपाई कर लिया। अब जब उन्होंने हमारे यहाँ के बंकरों को भी ऑक्यूपाई कर लिया तो भाई हुआ क्या। तो अब हुआ ये दोस्तों कि 1999 में जब भारत की सेना एक तरीके से उन पीक्स के ऊपर दोबारा चढ़ी मार्च के महीने में, तो वहाँ पर ऊपर बैठा पाकिस्तान का जो ये ब्रिगेड था जिसमें नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री उसका जो था उसके लोग थे और तंजीमों के लोग थे, उन्होंने भारत की सेना को ऊपर से शूटिंग करना शुरू कर दिया। अब हमारा जवान ऊपर चढ़ रहा है, उसको आप गोली मार रहे हैं। दोस्तों इस समय बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई कि हमें ये लगा कि भाई अगर पाकिस्तान ये हरकत कर रहा है तो पहले तो हमने उसको फ़ोन करके बातचीत करी। हमने कहा कि भाई ये कारगिल दराज सेक्टर में तुम्हारी तरफ से फायरिंग है। फिर अगर इन्होंने सिधाई वाले तरीके से हमारे जो ट्रूप चढ़ रहे थे उनको गोली मारकर हत्या करने की कोशिश करी, हम साइड से ऊपर चढ़ गए। अब जब हम साइड से ऊपर चढ़े तो हमने देखा कि भाई ये तो हमारे बंकरों को ऑक्यूपाई करके बैठा है। तो उस समय हमने इनको बोला, हमने कहा कि भाई आपने हमारे बंकर ऑक्यूपाई कैसे कर लिए। अब जब हमने इनको बोला कि आपने बंकर हमारे ऑक्यूपाई कैसे कर लिए, तो पहली बात तो ये माना ही नहीं। फिर हमने ये बात अमेरिका को भी बताई कि देखिए ये गलत हरकत करी है इन्होंने। अमेरिका ने भी उसको बोला कि आप जो है इनके बंकर छोड़ के वापस जाइए, ये नहीं माने। तो भारत ने उस समय सोच लिया कि भाई देखो अब हमारे पास मसला ये है कि हमें इनको बंकरों से हटाना है। अगर हमें इनको बंकरों से हटाना है तो हम हटाएं कैसे। हम इनको हटाएंगे एक ही तरीके से, और वो तरीका क्या है जी, वो तरीका ये है कि हमें इनको अगर बंकरों से हटाना है तो हम ये जो हेवी टैंक थे इनका तो प्रयोग कर ही नहीं सकते। अब हेवी टैंक जैसी चीज़ आप उतने बड़े पहाड़ों के वहाँ कैसे लेके चले जाओगे। तो हमारे को एक लिमिटेशन नज़र आई। फिर हमने कहा कि चलो, हमने अपनी सेना को बोला भाई आप लोग ऊपर चढ़ जाओ, आपको वायुसेना का सपोर्ट दे देंगे। वायुसेना वालों को बुलाकर बोला गया कि भाई देखिए हमारे ग्राउंड लेवल से सेना ऊपर चढ़ेगी पहाड़ पे, आप पाकिस्तान के वो बंकर जो हमारे साइड ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं आप उनको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, हमारी सेना रीऑक्यूपाई कर लेगी। वायुसेना को कैटेगोरिकली ये बोल दिया गया कि भाई इस ऑपरेशन के दौरान जो है आप एक तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये चीज़ हमने बोल दी। अब दिक्कत क्या थी दोस्तों, अब दिक्कत ये थी कि यहाँ पर जब हमने एक नया अप्रोच अपनाया कारगिल के समय, तो हमने अपनी सेना और वायुसेना को
एकजुट होके बोला ऑपरेशन करने को। सेना वायुसेना के एकजुट होने के बाद जो ऑपरेशन हुआ वो सक्सेसफुल था कारगिल में। अब कारगिल की डीपर एस्पेक्ट्स पे अपन लोग चर्चा नहीं कर रहे, उसको छोड़ देते हैं, पर ऑपरेशन सक्सेसफुल था। अब जब ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो इस ऑपरेशन को डॉक्यूमेंट किया गया। जब हमने इस ऑपरेशन को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करी तो हमने समझा कि भाई इस पूरे ऑपरेशन में जो चीज़ हमने करी वो ये थी कि हमने एक तरीके से वायुसेना और सेना को जोड़ के जो काम किया उससे एक नया डॉक्ट्राइन पैदा हुआ, और वो डॉक्ट्राइन था एयर लैंड डॉक्ट्राइन। पर दोस्तों ये एयर लैंड डॉक्ट्राइन जो पैदा हुआ, आप समझेंगे इस बात को कि ये एयरलैंड डॉक्ट्राइन ये तो केवल सिर्फ एक बार प्रयोग किया गया उस परिस्थितियों में जब हमारे सामने पाकिस्तान की तरफ से ये हरकत की गई थी, पर ऐसा कोई डॉक्ट्राइन थ्योरी पूरी बनी हुई तो थी नहीं हमारे पास। अब हमें था कि भाई इसको कंस्ट्रक्ट करना है पूरे को। तो दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए कि जब कारगिल का विवाद होता है, उस कारगिल विवाद के बाद क्या होता है कि भारत को दो चीज़ें समझ आ जाती हैं। पहली चीज़ जो भारत को समझ आ जाती है वो ये है कि भाई हेवी टैंक का प्रयोग ऊंचे पहाड़ों पर, जहाँ पर पाकिस्तान एक नया फ्रंट खोल के बैठ गया है, वहाँ पर नहीं किया जा सकता। अब भारत के सुरक्षा विशेषज्ञों के मन में ये दुविधा हुई कि भैया अगर ये नहीं हो सकता और अगर हमारे हेवी टैंक्स जो थे अगर इनका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते तो भाई फिर करें क्या। तो उस स्थिति में अब ये हुआ कि भाई वहाँ पर ये बात बोली गई कि ठीक है, अब जो ये हेवी टैंक हैं इनको पड़े रहने दीजिए, जब तक इनका लाइफ है इनको चलने दीजिए। फिर कारगिल के बाद कारगिल रिव्यू कमेटी बैठी। कारगिल रिव्यू कमेटी ने भी ये पॉइंट सबसे पहले उठाया कि भैया कारगिल ने प्रूव कर दिया कि हेवी टैंक्स का प्रयोग करना तो बेकार है, क्योंकि ये उस इलाके में जहाँ पर हमारा वैरी जो है नए नए फ्रंट हमारे लिए खोल रहा है, उन इलाकों में तो हम इसका प्रयोग कर ही नहीं सकते। अब दिक्कत क्या थी? दिक्कत साथ में ये भी थी दूसरी कि हमने एयर पावर का प्रयोग तो किया दोस्तों कारगिल विवाद में, पर इस कारगिल विवाद में एयर पावर के प्रयोग के बाद ये भी समझ आ गया कि भैया हमारे पास तो एयर एसेट्स भी नहीं हैं उतने, हमें तो एयरफोर्स को भी मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। अभी तो सारा मॉडर्नाइजेशन सिर्फ आर्मी का हो रहा था, और आर्मी में भी सारा मॉडर्नाइजेशन हेवी टैंकों का हो रहा था। तो हमें एक चीज़ तो समझ आ गई कि भाई हमें अगर काम करना है तो हमें एयर एसेट्स को भी मजबूत करना है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ देखनी है कि भाई ये जो हेवी टैंक्स हैं इनका क्या किया जाए, क्योंकि हेवी टैंक उन पहाड़ी इलाकों पे तो प्रयोग नहीं हो सकता। दोस्तों ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत चर्चा हुई कारगिल विवाद के बाद, पर दिक्कत क्या थी कि भारत सरकार ने कारगिल विवाद के बाद भी कोई सबक नहीं सीखा। कारगिल विवाद के बाद ये चीज़ तो तय हो गई कि भारत को अगर अपने वैरियों को फ्यूचर में टैकल करना है तो कहीं ना कहीं उसको एयरलैंड डॉक्ट्राइन डेवलप करना पड़ेगा। वो थॉट प्रोसेस आ तो गया, ये शब्द हमने सुन तो लिया, पर इसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया। अब दिक्कत क्या थी? अब दिक्कत ये थी दोस्तों कि जब ये हुआ उस समय एक चीज़ हुई साथ में। उस समय हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने ये देखा कि चीन अभी भी हमारे थॉट प्रोसेस में बैकएंड पे पड़ा हुआ था। हम 1999 में हैं, कारगिल विवाद हो चुका है, लेकिन एक चीज़ और समझ ये नहीं आई कि 1962 से आस लगा के बैठे कि चीन से विवाद हल हो जाएगा, मसला चीन के साथ हल हो जाएगा, वो 1999 तक नहीं हुआ था। तो खैर इसको तो हम लोग एकदम बैक बर्नर पे डाल के छोड़ दिए, सारा फोकस फिर पाकिस्तान पे रहा। पर अब था कि भाई हेवी टैंक तो कार्य का कुछ है नहीं, और साथ में एयरलैंड डॉक्ट्राइन बनाना है, एयर पावर के एसेट नहीं है अपने पास, अब क्या करें? इस स्थिति में दोस्तों जैसे जैसे कारगिल विवाद के बाद समय आगे बढ़ता गया, हमें बहुत सारे हिंट्स मिलते गए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती रहीं। जैसे कि 2013 में चीन के साथ दौलत बेग ओल्डी में
फिर से बॉर्डर लेवल पे विवाद हुआ। दौलत बेग ओल्डी लद्दाख में है। चीन के साथ दोबारा 2013 में एक बॉर्डर स्टैंड ऑफ होता है। इस बॉर्डर स्टैंड ऑफ से हमें फिर सबक नहीं आया कि ये बॉर्डर स्टैंड ऑफ एक हायर ऑल्टीट्यूड पे हो रहा है। इससे फिर ये सबक नहीं आया कि उस हायर ऑल्टीट्यूड पे अगर ये हो रहा है तो हमें हैवी टैंक वहाँ पर काम नहीं आएगा। हमें जो चीज़ काम आएगी वो है ग्राउंड पावर, एयर पावर। हमने ग्राउंड पावर जो थी आर्मी, उसको अच्छे अच्छे इक्विपमेंट दे दिए, उसको बंदूकें दे दी। एयर पावर को हमने मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया, बट ये नहीं सोचा दोस्तों कि आर्मी को टैंक का प्रयोग तो करना पड़ेगा, लेकिन हेवी टैंक आप कहाँ से लद्दाख में चढ़ाएंगे। 2013 में दौलत बेग ओल्डी हुआ, पर उसके बाद भी ये दिमाग में थॉट नहीं आया कि भैया हेवी टैंक का क्या करें, वो तो नहीं ले जा सकते वहाँ पे। एयर पावर को मॉडर्नाइज करते रहोगे। आर्मी को केवल नहीं बंदूक देना एक सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अब देखिए आगे क्या हुआ। 2017 में डोकलम कॉन्फ्लिक्ट हुआ। जब ये डोकलम में क्राइसिस हुआ, हमने ग्राउंड पावर का ही प्रयोग केवल किया। आर्मी के प्रयोग से डोकलम स्टैंड ऑफ को रोकने की कोशिश करी। मसला हल हुआ थोड़ा बहुत। मन में दुविधा फिर थी कि भाई डोकलम मसला भी हल हो गया, आर्मी जो है खुद जाके उस इलाके में तो बैठ गई, पर आर्मी के पास फायर पावर ही नहीं है। किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करे कि चाइना को डेटर कर पाए। 2019 में पाकिस्तान के ऊपर बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई। दोस्तों, जब 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई, बालाकोट एयर स्ट्राइक जो थी वो एक तरीके से दोबारा एयरलैंड डॉक्ट्राइन इन प्रैक्टिस थी। क्यों? क्योंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक में क्या हुआ, हमने फिर से एयर पावर का प्रयोग किया। पैरा फोर्सेस को एलओसी के उस पार हमने उनको भेजा, उन्होंने अपना ऑपरेशन करा, फिर हमने उनको एयरलिफ्ट करके वापस ले आए। एक चीज़ तो तय हो गई दोस्तों, एयरलैंड डॉक्ट्राइन का प्रयोग अलग अलग जगहों पर 1999 के कारगिल के विवाद के बाद होता हुआ कहीं ना कहीं दिखता रहा। पर जो सबसे बड़ी समस्या हमें अपने मन में अभी भी तंग कर रही थी वो ये थी, हेवी टैंक का क्या यूटिलिटी है, और आर्मी को हेवी टैंक नहीं तो फिर क्या दें। जब दोस्तों ये थॉट चल ही रहा था तो उसी समय 2020 में आप देखिए कि भारत का लद्दाख में चीन के साथ एक प्रॉपर स्टैंड ऑफ दोबारा चालू हो गया, जो अभी तक चल रहा है। अब इस लद्दाख स्टैंड ऑफ के अंदर एक बहुत बड़ा एक नैरेटिव है, बहुत बड़ी चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों पे हम जो चर्चा नहीं कर रहे। पर लद्दाख में एक स्टैंड ऑफ हुआ। अब ये जो लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ, समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ये लद्दाख का जो स्टैंड ऑफ था, इस स्टैंड ऑफ में क्या हुआ, इस स्टैंड ऑफ में चीन के फोर्सेस हमारे सामने दोबारा आ गए। अब चीन के फोर्स सामने खड़े हैं हमारे, तो हमने अपनी सेना को वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया। अब आप लद्दाख जैसे हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में एयर पावर तो लिमिटेड तरीके से ही ले जा सकते हैं। अब हमारे पास समस्या ये थी कि भाई ये तो अभी भी नहीं ले जा सकते। दोस्तों, 2020 में जब ये लद्दाख स्टैंड ऑफ हुआ ना, तो भारत के सुरक्षा विशेषज्ञों ने एक बात समझ ली, और वो ये समझ ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, इतना हमें अब समझ आ गया है कि जो हमारे वैरी हैं, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, अगर ये लोग भारत के ऊपर आक्रमण करें या भारत को किसी भी तरीके से विवाद में लाने की कोशिश करें, ये प्लेन एरिया पे नहीं लाएंगे, ये लाएंगे तो केवल पहाड़ों पे। और अगर इन्होंने गेम अब सारा आगे का फ्यूचर का पहाड़ों पे खेलना है ना दोस्तों, तो सबसे बड़ा सवाल ये है, इस पहाड़ों पे हम लोग किस तरीके से अपनी सेना को प्रिपेयर करें। तो दोस्तों, जैसे जैसे ये लद्दाख का स्टैंड ऑफ चलता रहा, जो अभी भी चल रहा है, इस नज़रिए को देखते हुए 2022 में फाइनली, हाल ही में 1.5 महीना पहले, भारत की सरकार ने एक निर्णय लिया।
और भारत की सरकार का निर्णय ये था कि भाई देखिए कि अब हमें एक चीज़ समझ आ गई है कि जो हमारे ये जो दो प्रिंसिपल वैरी हैं, चीन और पाकिस्तान, ये दो एक तरीके से भारत को अगर उसके ऊपर कोई आक्रमण करना चाहते हैं तो ये केवल पहाड़ी इलाकों में करेंगे, प्लेन इलाकों में ये हमारे साथ कोई खेल नहीं खेलेंगे। हमें ये समझ आ गया कि देखिए पहाड़ी इलाकों में अगर हम चाहें तो हम इनके ऊपर वायुसेना का प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। हमने वायुसेना का मॉडर्नाइजेशन किया, राफेल एयरक्राफ्ट भी खरीदे, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, हम लोगों ने नए रडार सिस्टम्स खरीदे हैं, चाहे S-400 रशिया का हो, अवाक्स इसराइल का हो, बहुत सारी चीज़ें हमने करी। लेकिन एक चीज़ हमें समझ आ गई कि एयर पावर को मॉडर्नाइज करना कोई सोल्यूशन नहीं, आर्मी को भी इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट देना बहुत बड़ी चीज़ है। इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो 2022 में दोस्तों फाइनली भारत सरकार ने बोला कि भारत अब लाइट टैंक्स के ऊपर थिंकिंग बनाएगा। जितने भी लाइट टैंक होते हैं ना दोस्तों, ये होते हैं 25 से 35 टन के। 25 से 35 टन का जो लाइट टैंक है, अगर भारत इन टैंकों को बनाएगा तो भारत के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है दोस्तों कि वो 25 से 35 टन वाले टैंकों को प्रयोग करके आज की डेट में पूरे माउंटेनियस रीजन में अपनी सेना के पास ये लाइट टैंक दे देगा। अब समस्या केवल एक है दोस्तों कि ये लाइट टैंक्स एक नया थॉट आ तो गया। जैसे 1965 ड्राइवर था हेवी टैंक्स के लिए, लद्दाख ड्राइवर था लाइट टैंक्स के लिए, कैटलिस्ट कह लीजिए आप। फ्रॉम हेवी टैंक्स टू लाइट टैंक्स, ये आर्क तो समझ आ गई हमें। पर दोस्तों दिक्कत पता क्या है कि लाइट टैंक 25 से 35 टन का अपने पास तो है नहीं अभी। हमने DRDO को बोला है कि भाई मेक इन इंडिया के तहत इसका बनाने का कार्य चालू कर दो। पर अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, हमारी परिस्थिति अभी क्या है कि हमारे पास हेवी टैंक है, चाहिए हमें लाइट टैंक। लाइट टैंक बनने में लगेंगे अभी कई साल, कई दशक। पर इस बीच के दौरान जब तक हेवी टैंक अपनी लाइफ जी के ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक लाइट टैंक इंडिया बना के उसको फुल्ली हेवी टैंक्स की जगह पे डिप्लॉय नहीं कर पाती, इस बीच के दौरान हम लोग क्या करें? तो इस बीच के दौरान भारत ने अब ये सोचा है कि हम लोग लाइट टैंक्स को टेम्पररीली प्रोक्योर कर लेते हैं। भारत अब इस नज़रिए से चीज़ों को देख रहा है कि हमारा मानना ये है दोस्तों कि लाइट टैंक्स हमें आर्म्ड फोर्सेस में अब चाहिए। अपने पास इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग अभी नहीं है, हो जाएगा आगे। पर हम अगर प्रोक्योर कर भी रहे हैं तो हम उसका प्रोक्योरमेंट इस थॉट प्रोसेस से करेंगे दोस्तों कि ऐसी परिस्थिति में ना पड़ जाएं कि अगले 55 से 60 साल जो है हम सिर्फ भारत जो है बाहर से मंगाए हुए लाइट टैंकों को मैनेज करने में ही निकाल दें। हम अब ये चाहते हैं कि लाइट टैंक थोड़े से नंबर में बाहर से इंपोर्ट करके उनको टेम्पररीली लगा दो चीन के बॉर्डर के पास। और अगर हम चीन के बॉर्डर के पास लाइट टैंकों को डिप्लॉय कर देते हैं तो एक चीज़ तय हो जाती है कि टेम्पररीली वहाँ पर एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट बन जाएगा। मीनवाइल पैरेलली हम लोग इंडिजिनस लाइट टैंक को मैन्युफैक्चर करेंगे, और जैसे जैसे ये लाइट टैंक को मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कर लेंगे उसके बाद ये इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा करने नहीं पड़ेंगे। ये इंपोर्ट्स टेम्पररी हैं और ये टेम्पररी इंपोर्ट्स को रिप्लेस करके हम अपने टैंकों को डिप्लॉय कर देंगे। तो दोस्तों इस पूरे डिस्कशन से हमें क्या समझ आ रहा है? हमें ये समझ आ रहा है कि यदि हमें अपने वैरियों को टैकल करना है तो उसके लिए अप्रोचेस क्लियर हैं। अगर आपसे आज की डेट में UPSC ये सवाल पूछता है, चाहे मेंस एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में, कि हाउ डू वी टैकल पाकिस्तान, आपका आंसर सिंपल है कि भाई पाकिस्तान को टैकल करने के लिए एयर लैंड डॉक्ट्राइन की है।
एयरलैंड डॉक्ट्राइन का प्रैक्टिस हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ कारगिल से लेके बालाकोट तक किया है, और एयरलैंड डॉक्ट्राइन पाकिस्तान जैसे स्टेट को मैनेज करने के लिए इफ़ेक्टिव है। हेवी टैंक्स जो पाकिस्तान के लिए बने थे उसका प्रयोग अब ख़त्म है। हमें अपने ग्राउंड पावर को टेक्नोलॉजी देनी है, एयर पावर मजबूत करना है, क्योंकि पाकिस्तान को मैनेज करना आज की डेट में सिर्फ एयरलैंड डॉक्ट्राइन के थ्रू ही होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपसे यूपीएससी ये सवाल पूछता है कि भाई हाउ डू वी टैकल चाइना, तो चाइना को टैकल करने का सबसे साधारण तरीका ये है कि मिलिट्री लेवल पर हमारे को एयरलैंड डॉक्ट्राइन ही हमारे को काम करेगा, लेकिन ये मिलिट्री लेवल पर एयरलैंड डॉक्ट्राइन जो है, इसमें जो लैंड कंपोनेंट है डॉक्ट्राइन का, उसमें हमें चाहिए लाइट टैंक। तो फ़र्क समझिए, पाकिस्तान के साथ लाइट टैंक का रिक्वायरमेंट नहीं है। एयरलैंड डॉक्ट्राइन फॉर पाकिस्तान जो है उसमें केवल लैंड कंपोनेंट पे मॉडर्नाइज्ड आर्मी चाहिए, जिसमें आर्मी के सोल्जर्स के पास एडवांस्ड इक्विपमेंट हो पाकिस्तान को टैकल करने के लिए, ऑपरेशन कैरी आउट करने के लिए, जो जैसे बालाकोट में देखने को मिला, और एयर पावर ऑब्वियसली चाहिए होगी। पर अगर हम सेम एयरलैंड डॉक्ट्राइन चाइना के लिए लगा रहे हैं तो ये चाइना के लिए एयरलैंड डॉक्ट्राइन अलग है, और इस एयरलैंड डॉक्ट्राइन के लिए जो चाइना के खिलाफ लगाया जाएगा, इसमें एयर पावर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो लैंड डॉक्ट्राइन वाला कंपोनेंट है ना दोस्तों, ये लैंड डॉक्ट्राइन के कंपोनेंट में लाइट टैंक चाहिए। तो आपके मन में आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आज की इस डिस्कशन के बाद जब भी आप कुछ अखबार में पढ़ते हैं और जब भी आप इस चीज़ के बारे में चर्चा सुनते हैं होती हुई कि भाई भारत चीन को किस नज़रिए से देखता है, पाकिस्तान को किस नज़रिए से देखता है, तो आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। भारत की सरकार अगर आज की डेट में ये बात बोल रही है कि हमें लाइट टैंक्स पे फोकस करना है, तो आपको समझना है कि हैवी टैंक एक प्रॉब्लम था, और आज की डेट में लाइट टैंक अगर आ रहा है तो वो किस जगह पे आ रहा है। और इसी तरीके से अगर आपको पाकिस्तान का, जैसे मैंने बोला कि वहाँ का एयरलैंड डॉक्ट्राइन और चाइना का एयरलैंड डॉक्ट्राइन फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आप लोग पाकिस्तान, चाइना, और सबसे बड़ी बात भारत का टैंक का समस्या, इंडिया की जो टैंक प्रॉब्लम है, उसको समझ पाए। तो ये हमारा पहल है कि इसी किस्म की मैं वीडियोस आपको देता रहूं, और इसी किस्म की वीडियोस से मैं आपको और इनरिच करता रहूं। बाकी दोस्तों, अनअकैडमी पे एक लेजेंड विजडम सीरीज़ है जिसमें मैं हैबिट्स के ऊपर एक डिस्कशन लूँगा आपसे। आप इसके लिए एनरोल कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे भी इसका लिंक अवेलेबल है मेरे, आप इसको ज्वाइन कीजिए। 21 जुलाई से हमारे जीएसके और सीसैट के बैचेस हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं इंग्लिश और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। तो आप हमारे साथ जुड़िए अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, और अपनी प्रिपरेशन को और स्मूदन कीजिए। तो आई होप इस वीडियो के तहत एक लार्जर थॉट प्रोसेस आपको क्लियर हो गया। थैंक यू।